So in the last experiment, we discussed the first half of the experiment number 5 in the manual, that is operation of clipper circuits using PN junction diode. We designed different circuits, positive clipper, negative clipper, then bias positive clipper and bias negative clipper. And in the end, we draw a combinational clipper circuit. We obtained its output, we discussed its output. Today we will be discussing the second half of this experiment, which is clampers. So the clampers are generally used to shift the desired level of the desired DC level of the waveform towards the positive side or towards the negative side. So your input signal will be either shifted in the upward direction or in the downward direction, depending upon the circuit that we are designing. That's why the clamper circuit is also called as level shifter. The clamper circuit generally consists of a capacitor, a diode, and sometimes a load resistance. We generally take output across the diode. So we have one capacitor here, one diode, and we take output in parallel to the diode. The direction of the diode will tell us whether it is a negative clamper or whether it is a positive clamper. Negative clamper will shift the whole waveform into the negative direction, and a positive clamper will shift the whole waveform towards the positive direction that we can see here. The whole waveform has been shifted towards the positive half, and here whole input signal has been shifted towards the negative half. So the basic working of the clamper, I think you all guys have discussed in the class also. Let me tell you in brief what generally happens in the clamper. While designing while drawing the output waveform of the clamper, what we generally do is we very first of all we identify the half cycle in which the diode is forward biased. The first thing is identifying in which cycle the diode is forward biased. So suppose we are taking this circuit, so this particular diode will be forward biased during the positive half cycle. All right. So during the positive half cycle, this diode will be forward biased. And what generally happens is during the forward half cycle, positive half cycle, this diode, if we replace it with its equivalent circuit and considering it an ideal diode, then this will be the equivalent circuit. Now there is a concept of time constant, which is tau, which related to the capacitor charging and discharging, and its formula is tau is equal to RC. Generally a resistor is also connected in here. Okay, so now what happens is during the positive half cycle or during the half cycle in which your diode conducts, the equivalent circuit becomes such that this branch is shorted. If now you take the time constant of the capacitor, that becomes tau is equal to 0 because there is no resistance in the circuit. This resistance will not affect because it has been shorted in parallel. Okay, so what does this mean? That your capacitor will charge as per your input voltage. There will not be any lagging, there will not be anything else. The capacitor will develop voltage across its terminals according to the input signal. Okay, so once it goes to the peak, let's say this is V max, so it develops a polarity of equal to V max, and the direction of polarity will be like this. It will be, अगर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल था, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पोलैरिटी थी इनपुट पे वो इस तरीके से, तो इसी तरीके से पोलैरिटी आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हो जाएगी. नाउ Vm voltage will be stored in the capacitor.
During the negative half cycle, what happens? This diode becomes reverse bias and it will be replaced with an open circuit. I'm just replacing it with the open circuit branch. Now the effect of resistance will be into the play. So the effect of this negative half cycle across the capacitor, that will be now studied by taking into account the effect of resistance. And with the help of this resistance R, what we have managed to do is changing the time constant value tau. Now R is not equal to 0, it has some value. So your capacitor during this cycle will take some time to discharge from this particular voltage Vm. वो एकदम से इनपुट को फॉलो नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर हाई वोल्टेज जिसने स्टोर की है उसको कम करने में, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द resistor. And we generally take this assumption here that the tau is greater than and equal to 5 times t by 2, where t is your input waveform time period. ठीक है, अगर आपका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है तो जनरली कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो चार्ज एक बार डेवलप हो जाता है दैट रिमेन्स स्टोर्ड, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत कम होने की कोशिश करेगा ड्यू टू विद अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, उसी टाइम पे आपका ये नेगेटिव हाफ साइकिल चला जाएगा और फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, तो अगेन वो इसी को जो है बार बार चार्ज करता रहेगा. What we have to remember is that during the half cycle in which your diode is forward biased, the voltage will be stored in the capacitor. During the negative half cycle, capacitor will remain, capacitor will keep storing that particular voltage, and now we will decide what will be the output voltage. अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देखेंगे इस सर्किट में, तो दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, a combination of input voltage and a combination of voltage that has been stored in the capacitor. So polarity of the capacitor voltage is like this. During the negative half cycle, polarity of the input waveform will be like this. So it is plus, minus, plus, minus. There will be addition of these voltages. Here it is a sinusoidal input waveform and Vm voltage will be added to that. ठीक है, पोलैरिटी हमारी प्लस माइनस जा रही है, तो इस टाइम पे यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो वो आपको नेगेटिव साइड में मिलेगी. केवीएल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो जितनी भी आपकी इनपुट वेवफॉर्म यहाँ पे थी उसमें वीएम और ऐड कर दीजिए माइनस साइन के साथ, वो आपको यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे ये माइनस वीएम था, तो हियर वी आर हैविंग माइनस 2 वीएम. ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस वीएम था, so that's why we are having here 0. So generally what we do, we remove this first half cycle. उसके बाद वाले जो साइकिल्स हैं हम उसके अंदर से फिर आपके आउटपुट ड्रॉ करते हैं. तो इसमें अगर आप देखोगे तो फिर आपका यहाँ से ये आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से आउटपुट. ठीक है, ऐसा ही हमारा इस साइकिल में होता है. इस ये वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है रिवर्स हाफ साइकिल में. सो वी विल रिमूव द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे. उसके आउटपुट को ड्रॉ करने के लिए वी विल फर्स्ट कंसिडर द नेगेटिव हाफ साइकिल. उसमें ये कंडक्ट करेगा, पोलैरिटी विल बी डेवलप्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर. नाउ नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस था तो उसकी पोलैरिटी हमारी इस तरीके से, तो इसमें इसकी पोलैरिटी जो है वो इस तरीके से स्टोर होगा. मैग्नीट्यूड आपका मैक्सिमम रहेगा जो कि था वी. ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी इसकी ये रहेगी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर टाइम कांस्टेंट विल बी देयर, इट विल नॉट डिस्चार्ज. और अब आपकी जो वोल्टेज आएगी वो आएगी माइनस प्लस माइनस प्लस, वट एवर वोल्टेज हैज बीन इन द इनपुट प्लस वीएम कर दीजिए, वो आपके आउटपुट में मिल जाएगी. ठीक है, तो आपके यहाँ से इसमें अगर आप चेक कर रहे देख रहे हो तो ये देखिए वीएम ऐड होके मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है. फिर हम इसका नेक्स्ट साइकिल अगर स्टडी करते तो उसमें हमारे आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके से आ जाता है.
ठीक है। सो ड्यूरिंग जो याद करने का हमारा एक और तरीका वो क्या है, अगर आपका डायोड पी टू एन ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो योर सिग्नल विल शिफ्ट अपवर्ड। अगर वो डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो योर डाउन सिग्नल विल शिफ्ट डाउनवर्ड। ठीक है। नाउ यू डिजाइन दीज सर्किट्स इन द मल्टीसिम, यू ऑब्जर्व देयर आउटपुट। ठीक है। आपने चार, तीन एटलीस्ट चार जो है सर्किट्स बनाने हैं। दो सर्किट्स आपके मैनुअल में दिए हुए हैं, बाकी दो में आप क्या करेंगे, यू विल टेक सम एक्स्ट्रा सप्लाई एंड कनेक्ट राइट हियर। वो आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। टेक इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट और 6 वोल्ट और 10 वोल्ट, वट एवर यू वॉन्ट, आप अपनी मर्जी की वैल्यू लीजिए। ठीक है। ये वाली वैल्यू को जो है ना इससे कम रखिए, थोड़ा जो इसका इफेक्ट देख पाओ। 2 वोल्ट 3 वोल्ट आप ले सकते हो, इसकी पोलैरिटी चेंज करके देख सकते हो। ठीक है। एंड देन ऑब्जर्व व्हाट इज द इट्स इफेक्ट ऑन द आउटपुट। तो अभी आप सबसे पहले सिंपल एक सर्किट डिजाइन कीजिए। ये आप लोगों ने वैसे पहले भी किया हुआ होगा। नहीं, कैपेसिटर वाला हमने नहीं किया था, हमने एक क्लिपर वाला किया था। ठीक है। तो पहले आप ये सर्किट बनाइए, डायरेक्शन चेंज की डायोड की, ऑटोमेटिकली ये वाला बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बैटरी लगा के दोनों में देख लीजिए क्या आपको उसका इफेक्ट आता है। एनी डाउट? सर आई थिंक लास्ट टाइम इन लोगों ने क्लैम्पर वाला नहीं किया था, कर लिया था। क्लैम्पर हो गया था क्या बच्चों? सर आई डोंट नो सर, क्लिपर तक ही किया था। ठीक है ठीक है, क्योंकि क्लास सैटरडे शायद छुट्टी होगी थी इसलिए रह गया था। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर आप क्लैम्पर कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना। सर यस सर मैं पहले दूसरे ग्रुप में था, तो मैं उसमें पहले कर चुका था एक। अच्छा, आप ये कर चुके हो? हाँ सर, मैं सबमिट भी कर। सबमिट भी कर चुके हो? हाँ सर। ठीक है, तो कुछ और सर्किट बना के देख लो। दो कैपेसिटर, दो डायोड लगा के देख लीजिए। सर बीजेटी तक हो गया था मेरा तो। बीजेडी भी कंप्लीट हो चुके हैं? हाँ सर, बीजेटी सबमिट करना रहेगा। कौन से ग्रुप में थे? सर मैकेनिकल प्रोडक्शन MP1। MP1। यस। चलो तो देख लो, आज आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो और तो आपकी मर्जी है बाकी। ओके सर। अच्छा सर ये जो मैंने पुराने सबमिट किए वहाँ पे, वो फिर से सबमिट करने होंगे यहाँ पे? अब आपका ये वाला ग्रुप परमानेंट हो चुका है? हाँ सर, ये परमानेंट हो गया। अच्छा, तो कर दो एक बार सारे के सारे एज इट इज सबमिट। ओके सर। फर्स्ट से लेके लास्ट तक नाम उसका फिर ग्रुप के हिसाब से ही देख लेना। सबमिशन सर। लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके सर।
किसी का हुआ अभी तक? मेरा हो गया, एक बार चेक कर दो। शेयर योर स्क्रीन नाउ। ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है थोड़ा? सर ये पॉजिटिव वाला है। नहीं, नीचे लेकिन वाली साइकिल ही नहीं है इसकी। क्लैम्पर तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि इन क्लैम्पर्स आउटपुट देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल. इट विल ओनली बी शिफ्टेड either upward or downward. ओके, तो क्या लगता है आपको कहाँ गड़बड़ हुई है? I want every student to look at the screen right now. The circuit has been designed in correct way. बिल्कुल सही सर्किट बनाया गया है, ठीक है, but still the output is not okay. That's because the time constant of this network is not fulfilling that condition, that it should be greater than equal to t by 5 times t by 2. तो अगर आप टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो आर और सी की वैल्यूज को चेंज करके, आप इनकी वैल्यूज को इंक्रीज कर दीजिए, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. तो या तो आप कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दो या रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज. तो मेरा भी बन गया सर, स्क्रीन शेयर कर दूं? जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके सर. ठीक है मिताली, जस्ट चेंज दी वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर. ओके सर। अभी स्क्रीन शेयर ही रखो और एक बार चेंज करो. रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 100 ओम की जगह थोड़ी ज्यादा कर दो उसको. कैपेसिटर की भी आप बढ़ा सकते हो, दोनों की बढ़ा दो थोड़ी थोड़ी. 10 माइक्रोफैराड इसको कर दीजिए. सर मेरी कंट्रोल जेड कर दो एक बार. ये 1 फैराड हो गया. हाँ 100 मिली फैराड, चलो ठीक है. नहीं 100 मिली फैराड तो काफी, वैसे तो आउटपुट आ जाएगी, बट आपने कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा हो गई है अभी. अब तो सही आया अगर आप ये। हाँ ओके, लिमिट्स भी चेंज कर लो। हाँ, और कौन सा जो शेयर करना चाह रहा था वो कर दे सकता है. मैं था सर. हाँ हाँ. सर नहीं, एक पहले तो ना इनपुट वोल्टेज को 1 वोल्ट से ज्यादा कर दो. 1 से ज्यादा करूं? हाँ मतलब 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसे कुछ लीजिए. पहले स्टॉप करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टॉप द सिमुलेशन. नो स्टॉप, डोंट पॉज इट. द आइकन नेक्स्ट टू द प्ले बटन, प्रेस दैट. यस 5 ही है सर. 5 ही है. ओके. 1 माइक्रोफैराड 1 किलो ओम. ठीक है, रन करो एक बार. आपके में भी जो आउटपुट है वो उसी उसी वही प्रॉब्लम है. यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट. यू कैन डू इट इन टू वेज. either you increase the product of R and C or you decrease the input sir. waveform frequency. इनपुट वेवफॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप उसका टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए. जैसे ये अभी 1 किलो हर्ट्ज है, इसको आप 10 हर्ट्ज कर दो, तो भी आप तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा.
ओके सर। सर 10 किलो हर्ट्ज। So 10 hertz, not kilohertz. ओके सर, ओके Is सर, it? ठीक है सर, ठीक है सर। Okay. सर अब नहीं नहीं नहीं, वो उल्टा हो गया फिर। आपको इंक्रीज ही करना पड़ेगा। You have to increase the time constant or you have to decrease the input waveform time period. रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दो अप टू 50 के हाँ, और 100 के। इस सर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज करो? 100 के कर दो के। और फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा इंक्रीज कर दो। 10 हर्ट्ज है उसको 100 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज कर दो। रेजिस्टेंस पे क्लिक करो तब आएगी वैल्यू। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करनी, रेजिस्टेंस पे क्लिक करो जहाँ R1 लिखा हुआ है। सर कितनी करूँ रेजिस्टेंस? 100 की कर दो। चेंज द लिमिट्स। कितने? वोल्टेज लिमिट वाई एक्सिस लिमिट कितनी सर? -5 to 5 कर दो। -5 to 5 हो गया सर। इनफैक्ट आपको -10 to 5 -5 करना टू पड़ेगा। 10 सर, -5 टू 10 लेना पड़ेगा। -5 to 10। हाँ, ऊपर टाइम को भी 0 से 732 गलत कर दिया ना। 0.1 सेकेंड करो उसको, या तो टाइम एक्सिस 0 to 0.1 सेकेंड। सर अब एंटर करो। हाँ, अभी भी तुम्हारे में एक दिक्कत सर और अभी भी टाइम टाइम गलत आ गया सर, टाइम गलत आ गया सर। नहीं, एक्चुअल में अभी वो आ रन रहा है। करो, रन करो अभी इसको। भी कंडीशन तुम्हारी शायद सेटिस्फाई नहीं हुई, टाइम कांस्टेंट वाली। हाँ अब ठीक है। सर अब ठीक है सर। नहीं, इनपुट वेवफॉर्म कौन सा है तुम्हारा, ग्रीन वाला कि इनपुट वाला? इसका इनपुट ग्रीन है, वेवफॉर्म है ना। सर आउटपुट इनपुट ब्लू है। ग्रीन है, आउटपुट ब्लू है सर। इनपुट भी ठीक नहीं आ रहा इसकी सर। आई थिंक फ्रीक्वेंसी कम कर दो और कैपेसिटर की वैल्यू थोड़ी एक बार डिक्रीज कर दो। स्कीमेटिक में जाओ, स्कीमेटिक में जाना। योर ब्लू इज इनपुट। हाँ, इनपुट आपका ठीक था, आउटपुट गलत आ रहा है, तो वो उसके लिए भी आपको टाइम कांस्टेंट इसको बढ़ा दो। इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है इसको 10 हर्ट्ज की जगह 100 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज कर दो, 1000 हर्ट्ज कर दो। सर 1 किलो कर देता हूँ। 1 किलो कर दो। रन करो। रन नहीं हुआ। हाँ, अब आप एक बार लिमिट इसकी चेंज करनी पड़ेगी, स्टॉप करके हाँ करना सर। पड़ेगा। सर लिमिट कितनी करनी है सर? टाइम पर डिवीजन डिक्रीज इंक्रीज कर दो पहले तो। डिक्रीज करो, डिक्रीज 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 लेफ्ट साइड। और करो। और कर दो एक बार। हाँ, सर और करूँ? बस ठीक है, और करना, और कर सकते हो। अब ठीक आ जाएगा। सर अब ठीक आ रही है। हाँ, अभी इसमें सिर्फ 0.7 का डिफरेंस है, वो ड्यू टू सिलिकॉन की वजह से है, हाँ सर। डायोड। बाकी सब सही है। सर सर स्टॉप कर दूँ शेयर करना?
हाँ स्टॉप कर दो, डायोड की डायरेक्शन चेंज करके दूसरा क्लैंपर बनाओ, और ठीक है जिस ब्रांच में डायोड है उसमें 2 वोल्ट की या 3 वोल्ट की एक बैटरी लगाओ, पोलैरिटी उसकी चेंज करते रहो, फिर उसकी इफेक्ट देखो क्या ओके सर, फाइन सर। है। सर मैं करूँ शेयर? दीपिका एक बार चेक करना इनकी। हाँ जी सर, शेयर करो। यस मैम। मैम विजिबल है? हम्म। ये आ रही है मैम। ठीक है, तुमने ये तुम्हारी कौन से इनपुट आउटपुट है? मैम ब्लू इनपुट है, ग्रीन आउटपुट है। ओके ठीक है। यस मैम। ये मैम सर्किट है। ओके ठीक है, परफेक्ट। ओके मैम। मैम इसके बाद पोलैरिटी चेंज करनी है? हाँ बस तुम्हें डायोड की पोलैरिटी चेंज करनी है और उसको ओके मैम। ऑब्टेन करो आउटपुट पे क्या आ रहा है। ओके मैम। ठीक है। मैं दिखा दूं क्या? हेलो। हाँ जी दिखाओ दिखाओ। हम स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही ओके मैम, ये स्कीमेटिक बनाया था। है। स्प्लिट करो screen। तुम्हारा ब्लू वाला है। अच्छा ओके ओके परफेक्ट। ओके ओके। मैम एक बार मेरा देख लो। हाँ जी बच्चे। ये नेगेटिव। This one is your wait negative. Okay. Next. Open circuit. Open circuit. ये पॉजिटिव। Okay. Perfect. Gaurav Verma, please mute yourself.
मैम हाँ जी मैं शो करूँ? हाँ जी हाँ जी शो कर। Just a minute. Okay, this one is first pause it. You are trying for the negative clipper. Okay, 10 to 20. Okay, perfect. ठीक है।
Who all are left? All have completed the clamper? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Who else? Who are left? Adesh completed. Aditya, you completed, na? Yes, ma'am. Okay. Ananita? Yes, ma'am. Done. Gaurav? मैम हो गया Okay. Mitali? Ma'am, done. Okay. Shaurya? Ma'am, done. Okay. And Aditya, you are open with 2 IDs? Yes, ma'am. I'm actually, one is on my PC and another is on my phone. Okay. 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 No problem. सर क्लैम्पर तो हो Yes. गया, अब बीजेपीटी शुरू करना है फिर? हाँ हाँ, आज वो भी करवा देते हैं. ओके. Let me share the screen. ओके, सो बीजेडी के लिए जो मैनुअल, सॉरी, जो वीडियो लिंक और पुरानी लैब मैनुअल है वो आप यहाँ से देख सकते हो. लेकिन जो अगर हम पुराने वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं मल्टीसिम में, तो वो ठीक से जो है वो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है बीजेटी की, वो हम प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर में ही देख सकते हैं. अगर सिमुलेट करके देखते हैं तो ट्रांजिस्टर इतना प्रैक्टिकली बिहेव नहीं कर रहा, वो इतना थोड़ा सा आइडियल कंडीशन की तरफ ज्यादा जाता है, तो हम ठीक से उसको देख नहीं पाते. So that's why we have changed this one experiment, and instead of switching characteristics, we will be doing the output characteristics of a BJT transistor in common emitter mode. ठीक है, तो कॉमन एमिटर मोड में हम ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाएंगे एंड वी विल ड्रॉ इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आप लोगों को पता होगा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कॉमन एमिटर में. लेट मी जस्ट ड्रॉ ए, suppose this is our common emitter transistor. This is emitter, base, and collector. So there are two characteristics. One is input characteristic, one is output characteristic. So if we study the input characteristics that is being shown in this figure, this is similar to the characteristics of a forward bias PN junction diode. So we will not be performing the simulation for this particular characteristics, but you can draw it on your own for your better understanding. What we will be doing in this lab will be the output characteristics of the common emitter transistor. तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किस किस के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. We draw a relationship between VCE and IC, current IC, by keeping input current, that is base current, as constant. So base current की value constant रखेंगे, and for that particular constant value of IB, we will draw a relationship between IC and VCE that you can see in here in the second characteristic curve. ठीक है, तो on one axis we will be having VCE, on another axis we will be having IC. Now we will draw all these graphs, all these curves. But on any one particular curve, the value of the base current is constant. For example, on this curve, IB is 10 microampere. On this curve, IB is 40 microampere. Okay, so what you have to do is you have to design this particular circuit. और इस सर्किट को एक बार आप जब डिजाइन करेंगे, then in the beginning
लेट मी शो यू द टेबल जो हमें करनी है. This is the circuit that you will be designing. In the beginning, set this collector voltage, PC voltage, to 0.1 volt. Okay, in this circuit, there is one transistor, one resistor, one battery, one resistor on collector side and one battery on the collector emitter terminal. ठीक है, तो कलेक्टर पे आप जो है वो 0.1 वोल्ट अप्लाई कीजिए. उसके बाद आपने क्या करना है, यू चेंज द वैल्यू ऑफ बेस करंट, सॉरी VBB, बेस वोल्टेज की वैल्यू इस तरीके से चेंज करो कि आपका करंट जो है बेस करंट वो बन जाए 10 माइक्रो एम्पियर. ओके, so first thing is setting the value of VCC. Now you have to set the value of VBB in such a way that the base current is 10 microampere. तो आपको ये बार बार हिट एंड ट्रायल से चेक करके यहाँ पे करना पड़ेगा. जब ये 10 माइक्रोएम्पियर हो जाए, after that you will be note first reading which will be given by these two probes, VCE and IC. Okay, set VCC, adjust VBB such that base current is 10 microampere, and at that particular time instance you will note down the reading of this current and this voltage. Now you will repeat this process by changing the value of VCC to 0.2 volt. अब इसकी वैल्यू बढ़ा देना 0.2 volt. जैसे 0.2 volt करोगे, there will be some change in the base current जो हमको नहीं चाहिए. तो हम VBB की वैल्यू फिर से थोड़ा एडजस्ट करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे कुछ घटाएंगे, बट वी विल मैनेज दिस बेस करंट टू 10 माइक्रोएम्पियर. जब ये सेट हो जाए, एट दैट इंस्टेंस नोट डाउन द सेकंड पेयर ऑफ रीडिंग. कीप ऑन डूइंग दिस. ठीक है, कब तक करना है आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. फ्रॉम 0.1 to 8 वोल्ट आपका ये फर्स्ट पेयर ऑफ रीडिंग्स बन जाए. देन अगेन सेम थिंग यू हैव टू डू, बट दिस टाइम यू विल बी कीपिंग द बेस करंट वैल्यू एट 20 माइक्रोएम्पियर. Repeat the same process for remaining readings. Complete this table and then draw the graph. This is your task. इसमें आपका थोड़ा लंबा टास्क है, लेकिन आपको कुछ हिट एंड ट्रायल से बेस करंट की वैल्यू को एडजस्ट करना है. बाकी दोनों प्रोब की रीडिंग आप नोट डाउन करते रहे. तो इस टेबल को पहले कंप्लीट कर लो, फिर ग्राफ जो है वो बना लेना. ठीक है, कर लोगे? यस सर. ठीक है, तो मैं स्क्रीन को यहीं पे शेयर करके रख देता हूँ इन केस आपको कोई रेफरेंस नहीं तो, या फिर मैं जो मल्टी सिम की स्क्रीन है वही शेयर कर देता हूँ. ठीक है, तो आप जो है ये वाला सर्किट पहले बनाइए, फिर इसमें एडजस्ट कीजिए. जैसे भी मैंने 0.2 वोल्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो 10.108 है, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना, 10 पॉइंट समथिंग चल जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. जैसे आप इसकी वैल्यू को चेंज करोगे 0.2 से 0.4 या 0.3 जो भी आपको उसमें दिया हुआ है, तो आपकी करंट की रीडिंग भी चेंज हो जाती है. Now you see that current reading is base current is now 9.9. तो आपको इन दोनों की रीडिंग नोट नहीं करनी है. You first change this value. ठीक है, तो वो 10.057 आ गया. तो अब इस टाइम पे आप इन दोनों की रीडिंग नोट कीजिएगा, फिर वो प्लॉट. ठीक है, आप इसको लगातार रन पे भी छोड़ सकते हो, फिर बाद में भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. जैसे भी मैंने 0.4 किया, इसको 0.4 की जगह नाउ आई वांट इट एट 1 वोल्ट. So your base current value again change the value of this. ठीक है, तो आपका वो 10 माइक्रोएम्पियर आ गया. तो इसको आप लगातार चलते रहने दो और इन रीडिंग्स को फिर नोट करते रहो. इसी तरीके से आपको बेस करंट 10, 20, 30, 40 के लिए ग्राफ बनाने हैं. बनाइए आप पहले एक कर्व बना के देखिए IB इक्वल टू 10 माइक्रोएम्पियर के लिए. कोई डाउट आता है तो आप पूछना.
If you have any problem, then ask. Or who have completed, please share your screen. मैम हाँ जी, मैम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेनी है वो कितनी है? 1K. ओके मैम, बाकी ठीक है ये? जो डायग्राम बना हुआ है, जो सरका है, यस मैम। हाँ ये ये ठीक मेरा है। है। देखो बच्चे, जो राइट हैंड साइड वाली है वो 1K है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो 100K। इधर R1 लो आप 100K, R1 ओके मैम। 100K करो से। और फिर से शेयर करा देते। हाँ जी, 1.77 ठीक है। करंट ले रखी है आपने करंट की डायरेक्शन बच्चे गलत ले रखी है। जो स्टार्टिंग में आपने करंट लिया है, जहाँ जो है आपका ये, हाँ उसमें देखो करंट की डायरेक्शन दूसरी साइड जाएगी, और रेजिस्टेंस के बाद में लगेगा करंट, रेजिस्टेंस के बाद में लगाओ। और वीबी को थोड़ा राइट हैंड में शिफ्ट कर दो। ओके, अब आपको क्या करना है, ये 1.100 ठीक है, 100 आ गया आपका 1.77 पे। IB की वैल्यू देखो, जो आपका फर्स्ट करंट है ना, ये आप PR2 और PR1 जो ले रखा है ना, इनका नेम चेंज कर दो। PR2 को IB कर दो, हाँ कोई नहीं, स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, PR1 को लिख दो VBE। ये प्रॉप्स है तो आप उसकी नेम चेंज कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज लिख रहे हो। PR3 को VCE, एंड PR4 को चेंज करो IC, एंड V2 जो प्रोब है आपकी, V2 जो वोल्टेज सप्लाई आपने दी है उसको आप VCC कर दो। सब लोग देख लो, ये नेम दे दो सब अपने अपने, और PR5 को चेंज करके IC कर दो, IE क्योंकि ये एमिटर करंट है IE। ओके ठीक है, अब आप, क्योंकि आपको जो दे रखी है ना, जो आपको टेबल बनानी है इसी फॉर्म में बनानी है, इस वजह से मैंने वैल्यू चेंज करा दी। तो आप लोगों ने बीजेटी तो पढ़ यस रखा मैम। होगा, पढ़ रखा है बीजेटी? हाँ तो गुड। तो फिर अब इसमें क्या करना है, आपने VC की वैल्यू फर्स्ट में जैसे सर ने बताया था, VC की वैल्यू 0.1 वोल्ट करो, VCC। ओके ठीक है, 0.1 हो गया। अगर राइट हैंड साइड में लिख दो, लिखा हुआ उधर, ठीक है ओके, 0.1 वोल्ट हो गया। अब देखो VBV की वैल्यू आपको चेंज करनी है, जिससे कि वैल्यू IB की 100 माइक्रो एम्पेयर हो जाए। तो आपकी VBV की वैल्यू 1.77 वोल्ट दी आपने, IB की वैल्यू आपकी 100 हो गई, सॉरी 10 माइक्रो एम्पेयर हो गई। अब इस वैल्यू के लिए आपको VCE और जो आपने ऊपर वैल्यू दी है IC, उन दोनों की वैल्यू नोट करनी है, ठीक है। एक बार आपने नोट कर लिया, देन अगेन फिर दोबारा से क्या करोगे, VCC की वैल्यू 0.2 वोल्ट चेंज करोगे। अभी नोट कर लो आदित्य, साथ साथ कॉपी में ना, नोट कर ली वैल्यू? यस मैम। ठीक है, अब VCC की वैल्यू 0.2 वोल्ट दो। ठीक है, रन करो, स्टॉप करो। अब देखो IB की वैल्यू चेंज हो गई थोड़ी सी, 10.456 हो गई। अब इसको वापस इतना करो कि 10 माइक्रो एम्पियर ही रहे वैल्यू, वैल्यू चेंज करो इसकी, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, 1.75 हो जाएगा, 1.78 हो जाएगा, इतनी वैल्यू चेंज होगी, इतना ज्यादा नहीं होगा। और थोड़ा कम करो,
1.72 करके देखो। 9.7 1.72 करेंसी की वैल्यू 8 वोल्ट तक लेनी है आपको। जो आपकी वो टेबल डाउनलोड कर लो, उसमें देखो 0.1 0.2 0.4 0.8 1 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। इन वैल्यूज की वीसीसी की वैल्यू के लिए आईबी की वैल्यू पहले 10 माइक्रो एम्पेयर ही रखनी है, ठीक है। फिर वीसीई और आईसी की वैल्यू नोट करो। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आपको आपका एम है वीसीसी की वैल्यू फिर से 0.1 वोल्ट चेंज करो एंड आईबी की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पेयर करो सारी वैल्यूज के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है? यस मैम, यस मैम। फिर थर्ड में आपका थर्ड स्टेप ये है, जब आप सारी वैल्यूज उसकी नोट कर लोगे, फिर आईबी की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पेयर बनानी है आपने, फिर 40 के लिए करना है, फिर 50 के लिए करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसमें कर लो, फिर आगे वाली लैब में भी थोड़ा करवा देंगे। तो धीमे धीमे करके एटलीस्ट आज एक है कि आईबी की 10 माइक्रो एम्पेयर के लिए हमें ग्राफ दिखा दो, इतना कर लो आज के लिए, ठीक है। यस मैम। तो आईबी की 10 के लिए नोट कर लो सारी वैल्यूज एंड ग्राफ दिखा दो क्या बन रहा है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बना लेना विद हेल्प। ओके, चलो बनाओ। अगर ग्राफ पेपर नहीं बनता हो तो आप एक्सेल में भी बना सकते हो, एक्सेल में या डेस्कमोड पे, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे, इसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बना लेना।
सर दीपिका बोलो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? एक्स एक्सिस पे आपका VCE और वाई एक्सिस पे IC सॉरी, ओके क्योंकि सर, दोनों थैंक हमारी प्रोब्स हैं, इनकी रीडिंग VCE एंड IC। यू। ओके सर। एक्सेल में कर लो थोड़ा और ठीक से बन जाएगा ग्राफ। यस सर। ग्राफ पेपर पे वैसे ये एक बेनिफिट रहेगा कि जब पॉइंट्स को आप डॉट करो, डॉट को जब ज्वाइन करोगे तो आप हाथ से उसको थोड़ा करो बना
Anyone drawn the graph? Anyone could draw the graph? आदेश? मैम ले रहा हूँ अभी मैं रीडिंग्स। रीडिंग दे रहे हो? ओके। यस मैम। आदित्य रीडिंग्स। अभी रीडिंग्स दे रहे हो? अनंता? मैम वीसीसी और वीबीबी को साइमल्टेनियसली एडजस्ट करना है। वीसीसी को एक बार चेंज करना है, जो यहाँ पर V2 वैल्यू दी हुई है इसको वैल्यू चेंज करना है। जैसे 0.1 वैल्यू ले लिया आपने स्टार्टिंग में, देन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ VBB, उसके अकॉर्डिंग IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पेयर कांस्टेंट रखनी है, जो आज आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। जब 10 माइक्रो एम्पेयर कांस्टेंट आ जाएगी, देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ VCE एंड IC, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। ठीक है, IC की वैल्यू आपको हॉरिजॉन्टल उसमें वर्टिकल रखनी है, एंड VCC की वैल्यू आपको, VCE की वैल्यू आपको हॉरिजॉन्टल रखनी है। ओके मैम। And IB की value should be constant for it. Next, who is left? Gaurav? Gaurav Verma? No. Mitali? यस मैम, एक बार चेक कर दो बताओ क्या चेक करना है? ग्राफ। दिखाओ। हाँ जी, ओके, ठीक है। आपका ग्राफ बस बीच की वैल्यूज नहीं आ रही ना कोई? आपने 5 ही लिए हैं बस अभी तक? यस मैम, मेरा 10 आ गया था उन्हीं वैल्यूज से। नहीं बच्चे, उन्हीं वैल्यूज से नहीं आना। मतलब आप 0.1, 0.2, 0.3 जब वैल्यू चेंज करोगे 10 तो आएगा, लेकिन आपको IC की जो आपने वैल्यूज नोट करनी है VCC की, वो तो आपको ज्यादा वैल्यूज लेनी है ना। ठीक है, तो मैं पहले से स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने 1.74 से स्टार्ट करा था, तो उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर देती हूँ, फिर ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हो। जैसे अब मैंने VCB की जो वैल्यू थी, जो वोल्टेज की वैल्यू लेनी थी, जैसे आपने कहा था 1.77 से स्टार्ट करना। नहीं 1.7 जो VBB की वैल्यू थी, वो आपको वैल्यू इतनी चेंज करनी है कि जो IB है वो 10 माइक्रो एम्पेयर आ जाए। ठीक है, बट VBB के बीच में ग्राफ नहीं बनना, तो उस वैल्यू से तो कोई मतलब है ही नहीं हमें। ठीक है बच्चे? ओके मैम। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, VCC की वैल्यू चेंज करनी है, जो कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, आई थिंक वो देखो कौन कौन सी लेनी है। आई थिंक 8 वैल्यूज हैं टोटल, तो वो वैल्यूज VCC की चेंज करनी है। उस वैल्यू पे देखना है। VCC की फिर आपको कोई मतलब नहीं है उससे। एक बार आपने मान लीजिए पॉइंट VCC की 0.1 वैल्यू रख दी, फिर आप उसको भूल जाओ। ठीक है, नाउ मूव टू द लेफ्ट साइड। अब आपको VBB की वैल्यू इतनी एडजस्ट करनी है कि हमारी IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पेयर आ जाए। जहां आपकी 10 माइक्रो एम्पेयर आ गई वैल्यू, देन VCE एंड IC की वैल्यू नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरा आपका टास्क है, अगेन VCC की 0.2 वैल्यू चेंज करो। ठीक है, अब भूल जाओ VCC कुछ है भी। देन अगेन मूव टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर डायग्राम स्कीमेटिक। देन VBB की वैल्यू चेंज करो उतनी कि IB की वैल्यू आपकी 10 माइक्रो एम्पेयर रहे। वो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होता कि VBB की ज्यादा वैल्यू चेंज करने पे IB है, थोड़ा बहुत ही मूव होता है आगे पीछे, तो थोड़ा बहुत ही आगे पीछे चेंज करनी होती है। फिर अगेन नोट डाउन द वैल्यू ऑफ VCE एंड IC। ठीक है, ये वैल्यू चेंज करके आपको ऑब्टेन करना है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू हमने नोट ही नहीं करनी। और राइट हैंड में भी हमें सिर्फ 2 वैल्यू IC एंड VCE की वैल्यू नोट करनी है।
बट हमें वैल्यूज बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा कि हमारी 10 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है आईबी की वैल्यू या नहीं। ओके मैम। ठीक है, तो उस हिसाब से वैसे ग्राफ आई थिंक ठीक आ रहा है, बट कुछ वैल्यूज कम है और बनाओ। ओके। श्योर है? मैम अभी रीडिंग्स ले रहा हूँ मैं। ओके। Okay, guys, so you can draw all these curves for different values. जो फाइनल आपका प्लॉट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बाय टेकिंग दिस ग्राफ, जो भी आपने बनाया है उस ग्राफ को कंसीडर करके यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट रेजिस्टेंस एंड करंट गेन बीटा। ठीक है, तो इसके लिए आपकी डिफरेंट पॉइंट्स पिन की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, तो आप कोई भी एक वैल्यू लीजिए, और जैसे ये वाला हमें अगर कैलकुलेट करना है आर नॉट, तो इसके लिए हमारा क्या है कि हमारी आई बी जो है उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू ले लेना, आई बी इक्वल टू सपोज 30 माइक्रो एम्पियर लिया। ठीक है, और फिर हमें रेजिस्टेंस निकालना है आर नॉट। नाउ यू नीड डेल्टा वी सी ई एंड डेल्टा आई सी। ठीक है, तो आप कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए कि यू आर कैलकुलेटिंग बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो अगर आपकी VCE की रेंज 0 से लेके आप 5 तक ले रहे हो या 0 से लेके 2 तक ले रहे हो, तो इन्हीं दो रेंज के बीच में आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। 30 माइक्रो एम्पियर पे आपकी इस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है और इस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है, तो वहां से आपका जो है वो डेल्टा IC आ जाएगा, और एक पॉइंट से आपका डेल्टा VCE आ जाएगा, और दोनों के रेशे से हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप और कम भी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो। ये जो भी पॉइंट्स लेने हैं आपने कि ये कौन सा IB की क्या वैल्यू लेनी है, VCE की क्या रेंज लेनी है, वो आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से ले लें। ठीक है बच्चों, जो दूसरी चीज निकालनी है वो है बीटा। उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, द रेशियो ऑफ डेल्टा IC एंड डेल्टा IB, बट इन दिस केस VCE इज कांस्टेंट। ठीक है, तो VCE अगर कांस्टेंट करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले VCE की कोई भी एक वैल्यू सपोज कीजिए हमें 5 वोल्ट पे निकालना है। ठीक है, तो आप 5 वोल्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पहले। ठीक है, और इसमें हम एक किसी भी दो इसमें भी रेंज हम लेते हैं, तो जनरली हम जब ये बीटा और आर नोट निकालते हैं तो हमारा एक पॉइंट और होता है जो कि हम ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, उसके आसपास हम ये सारी चीजें निकालते हैं। तो सपोज कीजिए आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ IB इज लेट्स से 25 माइक्रो एम्पियर। ये वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 25, 15, 35, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। So these two values will decide our operating point, value of IB and value of VCE. Now you want to calculate the current gain beta. उसके लिए हमें फिर से दो वैल्यूज चाहिए, डेल्टा IC एंड डेल्टा IB। अब IB तो हमारा फिक्स है, डेल्टा IB कैसे आएगा, और उसी हिसाब से डेल्टा IC कैसे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, एक कर्व हम इसके ऊपर का कंसीडर करेंगे और एक कर्व हम इस पॉइंट से नीचे का कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा ये वाला पॉइंट है तो हमने एक कर्व ये वाला उठा लिया और एक हम ये वाला कर्व ले लेंगे। ठीक है,
इन दोनों कर्व का जो भी हमारी IB की रीडिंग है वो हमारी IB1 IB2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम डेल्टा IB निकाल सकते हैं। तो इस केस में वो 30 - 20 10 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज। दिस विल गिव अस डेल्टा IB। और डेल्टा IC निकालना होगा तो इन्हीं दो कर्व के साथ में जो भी आपका VCE के साथ वैल्यूज हैं, अब आपको उन्होंने वो वैल्यूज भी देखनी है आपने। इसका मतलब क्या है कि जहां पे ये VCE वाली लाइन कट कर रही है वहां पे आप देखिए IC की क्या वैल्यू है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। नाउ दिस विल टेल अस द वैल्यू ऑफ डेल्टा IC। तो जब आप इस ग्राफ को अच्छे से बना लेंगे तो आप ये सारी वे चीजें उसी के अंदर आपने ये करनी है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इस पॉइंट पे आपका करंट गेन बीटा आ जाएगा। तो ये भी आप अपनी मर्जी से अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो सारी की सारी। 25 माइक्रो एम्पियर की जगह इनफैक्ट अगर आपका 30 माइक्रो एम्पियर ले लिया आपने एग्जैक्ट, तो भी आप क्या करो, एक 40 का ले लो, इसके ऊपर वाला एक नीचे वाला 20 का ले लो। जो भी आपके इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही आपने देखनी है। ठीक है, अगर आपने 17 ले लिया तो एक 20 का ले लो, एक 10 का ले लो, तो उस हिसाब से आप उनको कर सकते हो। कोशिश ये करना कि जो भी आप एक कर्व ऊपर का ले रहे हो और एक कर्व नीचे का ले रहे हो वो दोनों इक्वी डिस्टेंट हो। जितना ऊपर वाला कर्व ले रहे हो उतना ही नीचे वाला कर्व आपको मिल जाए। तो जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो 10, 20, 30, 40 और 50 पे ले रहे हैं। तो इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट एग्जैक्ट मिडिल में आप ले सकते हो। 35 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर ले लिया, 45 ले लिया, या 5 माइक्रो एम्पियर ले लिया। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को कंसीडर कीजिए। आप बताइए यहाँ पे कि आपने क्या क्यू पॉइंट लिया है। VCE की वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जब आपने एक बार ऑपरेटिंग पॉइंट बता दिया फिर आप उस पर ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आप ये सब निकाल सकते हो। यस नो बताओ कुछ। यस अच्छा ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना ग्राफ को, और अगर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगे तो इस वाले लैब का असाइनमेंट जो है वो आप थोड़ा बाद में भी सबमिट कर सकते सर हो। यस, सर ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दिखाओ एक सेकंड, ओके सर। शेयर स्क्रीन। बाद में कम कैसे आ रही है वैल्यूज? वो ना एक्चुअल में मिली एम्पियर में होगा, ध्यान से देखो। सर ऐसा है ये। हाँ, तो जैसे ये पहले मिली एम्पियर में होगा, ये उससे पहले ये मिली एम्पियर में नहीं था, 0.008 लिखा होगा, वो तुमने मिली एम्पियर कंसीडर कर लिया उसको। अब अपना ग्राफ दिखाओ। हाँ, तो ये जो वैल्यूज है ना 48, 127, एक्चुअल में ये यस सर। मिली में है। ओके सर। और ये तुमने वो कर दिया, या तो इनको 1004 करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों वैल्यूज को, या इन तीन सारी वैल्यूज को 1000 से डिवाइड कर दो, तो फिर ठीक बन जाएगा। यस सर। ठीक है यस सर। यार। हाँ, ये आप बाकी स्टूडेंट्स भी ना थोड़ा ध्यान रखना कि वहां पर क्या वैल्यूज आप ले रहे हो। तो वहां पे 800 मैं लिखा शो हो करूँ सकता है, ग्राफ? लेकिन आगे सर मेरा हाँ ही बन गया ग्राफ, शो करूँ सर मैं? करो करो करो। ये बन रहा है सर। हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा ही बनेगा। ओके सर। ठीक है, तो आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि एक टाइम के बाद आप VCE की वैल्यू कितनी भी बढ़ा रहे हो, आपका जो करंट कलेक्टर करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। एनीवन एल्स, एनी डाउट? किसी को शेयर करना हो? चलो फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ एंड आई विल अपलोड द लिंक on the LMS
You can again revisit the web in this link. अगर कोई डाउट आता है तो देख सकते ओके सर। ओके सर, थैंक